Yes, sir. Okay. Now, guys, please do not get confused. If you're getting confused, please do ask me. Now, you'll see exact two machines, similar machines. What have I done here? In AWS, I have taken the backup of this machine and I created one more machine. Why did I do that? Just to show you the same steps. But ultimately, which I will be migrating is this machine. So you'll see exact two machines. But one is dummy machine and one is the actual machine जहां से हम migrate करने वाले हैं. वैसे it doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, but don't assume कि इतना quick होता है सब कुछ. I mean, I will install one tool here, replicate वगैरह शुरू कर दूंगा and then I'll show you the migration from here. But don't imagine कि वो सब इतना जल्दी हो रहा है. Just understand, keep this with you that we do have two machines, right? So I'll tell you when I'm going to do on what the actual machine. So this is the dummy machine I'm using, but this everything will be there because I have created one image on my AWS account like we have in Azure. We have image, we have snapshot. In AWS, we have AMI. Okay, we have machine image. We do have that. So I've created that. तो ये सारा website वगैरह सब कुछ मुझको यहाँ पर भी मिल जाएगा. So from scratch, I will show it to you what needs to be done. Let's go to the portal. वहां पर हमने ये बना दिया था. Okay. Now, first thing, let's quickly check Azure Migrate tool. We are looking at only Azure Migrate tool. I will show you the report of this tool, Current, but that we will, once our 3 sessions are done, we will have a small session of 10 minutes. I'm not going to record that session and I won't be uploading that to YouTube also. But I'll show you the actual reports. That is from one of my freelancing jobs. Though I have sanitized it already, but it's a huge report. So I am suspecting कि यहाँ वहाँ छोटा मोटा किसी का नाम दिख सकता है. And I do not want that to come in recording. That won't look good. Though I do have permission from my client also, I can share it, but still I do not want to do that. I'll show you this report also, the assessment report, just for your understanding. Right? But after these 3 sessions, we'll have one session. Very less time. It will take 5 or 10 minutes, not more than that. Okay. Now, we will be doing the assessment of application using Azure Migrate Discovery and Assessment tool. We have two tools, Azure Migrate Migration and Modernization tool, Azure Migrate Discovery and Assessment tool. And you can call it Azure Migrate tool, sabko milakar. And now let's see. What does it say? That you can do the discovery. What is the first step of migration? It's a discovery. Or for let's call it to be precise, what is the first step of assessment? It's discovery. Migration ka bhi discovery hi hota hai, and without assessment you can do migration. Understand this. This is not a prerequisite, but it's always recommended. Live environment में कभी नहीं देखोगे आप without assessment कोई migration. But these are not prerequisite. आप migration कर सकते हो without assessment. Okay. Now when I click on discover, if I want to do discovery, I will click on discover. Here there are two methods. One is I can select here that where my servers are. जिन server का मुझको assessment करना है वो servers कहाँ पर है? Are they on Hyper-V? Sorry, are they on VMware, vSphere, or are they on Hyper-V, or they are on physical data center, AWS or GCP? What will I select here, guys? What do you think? I've shown you my server. What should I select here? On-prem. AWS. On-prem? AWS. It's same thing. Physical, AWS AWS. on-prem. Yes. Third option? Yes. Anyone else thinks otherwise? No. I Second option. Second Yes. option. Why? Because I'm not migrating my actual server. I am migrating those two servers which are hosted on Hyper-V. Got it, guys? So I click here. Then it gives me. I don't think so. I will be able to show this practical to you in the totality, but I'll show you the result. When I do this, okay, it is asking for the name your appliance. Let's say I'm again calling it dummy. Dummy assessment report, and then it will give me an option to generate a key. Look at these steps carefully. Remember them. If you forget them, go ahead and watch the video again. Though we will not be able to complete this practical of assessment using this method. I'll tell you why. See, now it is generating a key, and then it will allow me, or it will ask me to download a VHD of 12 GB. Now, what is a VHD?
Anyone knows what is a VHD? Virtual hard disk. Why do we use it? What exactly it means? I mean, that is a full form. What is it? It stores the data. It stores everything. It stores your virtual machine. ये कुछ नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा C ड्राइव V ड्राइव का पूरा कॉम्बिनेशन है, आप समझ लो. इस VHD को बस उठा के आप कहीं पर लगा लो, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी. So it ask me to download. Here I can download the 12 GB file or a zip one 500 MB. आगे जाके वो सेम ही होने वाला है. Okay, so you download either this or this. You download that, and then how it works in actual environment. Being an Azure administrator, you download this. इसको आप रखते हो किसी कॉमन लोकेशन पे. देन यू सेंड एन ईमेल और टीम कॉल्स ऐसे कुछ करते हो आप क्लाइंट का जो ऑन प्रीम सिस्टम एडमिन है उनसे, बिकॉज यू वोंट हैव एक्सेस टू देयर हाइपरवाइजर, टू देयर वी सेंटर, राइट? यू विल कीप इट इन समवेयर in middle, somewhere on network location, and you will tell them कि यहाँ पर रखा है. Now what you ask them to do, that set up an appliance. Set up appliance का क्या मतलब होता है? It's nothing, एक virtual machine बनाने का ही मतलब होता है. So what they will do is, वो यहाँ पर जाएंगे, okay, create a new machine, new virtual machine. This is how they will do it. Okay, click next. They will name the machine whatever they want. ये सब उनका कॉल होगा. Next, next. They will assign some memory. Next, next. Now, आपको ये मशीन बनानी कहाँ से? आप इंस्टॉल करना चाहते हो, or do you already have a virtual hard disk? So in this case, we have provided them one virtual hard disk, right? So they will come here and they will browse that location. नेटवर्क से कभी नहीं करता, by the way. नेटवर्क से वो भी उठा के अपने किसी लोकल इस पे उसको ये करेंगे, and they will look at this. This is how it looks. But ये मेरी existing machine के hard disk है. I don't want to touch them, right? But this is how it will look. वो जो 12 GB का आप इंस्टॉल करोगे ना, this is how it will look. So they will select it. I'm not doing that. I don't want to disturb my actual machine, right? And they will click on finish. What will happen after this? यहाँ पर एक तीसरा मशीन बन जाएगा, डमी मशीन, और देन उस मशीन के थ्रू ये सारे मशीन का डेटा जो है वो फेच होगा. Are you guys getting it? Yes, Sullivan. Okay. Now, how will it So look? I'll show it to you. ठीक है, यहाँ तक हो गया. But why are we not able to do it? What is it asking for? कि ये appliance आपको बनाने के लिए, what is the requirement you need? So the requirement is that you should have a machine which has 16 GB of RAM, 8 virtual CPU and 80 GB of disk storage. इतना मेरा आई थिंक AWS के ही मशीन का है, उसमें मैंने ऑलरेडी इन दो मशीन में वो डिवाइड कर रखा है. तो मैं इतना रिसोर्स हमारे पास है नहीं, राइट? 80 GB हार्ड डिस्क फिर भी मिल जाएगा, 8 वर्चुअल CPU और आई थिंक मिल सकता है, बट इट्स ओके, वी डोंट हैव टू डू इट, राइट? बहुत ही ज्यादा हमारा फिजिकल मशीन कमजोर हो जाएगा देन उसके बाद. सो यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ availability in your resources, or actual environment में ये this is nothing. You will have terabytes of data and number of virtual CPUs और बहुत कुछ होता है वहां पर. So actual environment में this is not a problem. You will simply go ahead and download. You will ask them to do the install the appliance, and then once they install the appliance, उसके बाद क्या होता है I will show it to you. और इसका alternate method क्या है? That you can import the same. कोई client थोड़ा सा ये होता है, नहीं I don't want to install anything on my on my environment. Then you ask them, could you please export the data and give me the data? किस sense में चाहिए आपको data? यहाँ से you'll have to download a file. I already have this file downloaded. I'll show it to you. Once you download this file, इस तरह से वो फाइल दिखती है आपको. Azure migrate template, इसी तरह से exactly this is what it is. I have already downloaded that just to save time. This I have filled. यहाँ पर बस एक fill होकर आता है, right? And then you ask them, could you please fill this these details, this sheet. यहाँ पर सारे अपने सर्वर के नाम लिखेंगे, अपने आईपी एड्रेस लिखेंगे, कितना कोर का ये है, कितना मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, आर्किटेक्चर कौन सा है, सर्वर टाइप, हाइपरवाइजर, सीपीयू, यूटिलाइजेशन परसेंटेज, ये सब उनको कहाँ से मिलेगा? नन ऑफ योर बिजनेस. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टेल यू, अगर वो हाइपरवाइजर है तो हाइपरवाइजर में ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है ये डेटा फेच करने का. इफ इट इज ऑन vSphere, then vSphere पे एक टूल होता है कॉल्ड RSV टूल और RSV टूल. vSphere का RSV टूल होता है. Using those tool you can fetch this data, but that is not your headache. They will take care of it. कि उनको ये डेटा कहाँ से लेकर आना है, कैसे लेकर आना है. They will manage it. You don't have to worry about it.
राइट। इससे बेटर होगा कि आप कन्विंस करोगे उनको दैट दिस इज वेरी सिक्योर, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, वो आप मशीन इंस्टॉल कर लो तो ये सारा डेटा अपने आप वहां पर आ जाएगा। So once this sheet is filled by them, you will come here and import it and upload it. Simple. यहाँ पर आप आओगे, इसको सेलेक्ट करोगे और अपलोड कर दोगे। I'll do it for you. Okay, let's see. But assessment में टाइम लगता है, so now what we are going to do guys, मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा लेकिन रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा अपने पहले प्रोजेक्ट का। ठीक है, आई एम इम्पोर्टिंग इट। टू मेथड्स, एक तो हम अप्लायंस से कर सकते हैं, विच इज रिकमेंडेड, विच इज नॉर्मली पीपल यूज। ऐसे कभी नहीं होता है, कोई इतना मना नहीं करता है, बिकॉज इट्स वेरी बिग टास्क फॉर देम कि एक एक मशीन का इंफॉर्मेशन निकाल कर दे वो, इवन इफ इट इज ऑटोमेटिक। प्लस उसमें कुछ गलती हो जाती है, सो इट्स ऑलवेज अप टू देम। यहाँ पर गलती होती है, दे विल से कि आपका अप्लायंस था, यू डिड इट। एक्सेल फाइल में कुछ भर के देंगे, उसमें गलती होगी, इट्स देयर हेडेक। ओके, सो नाउ इट इज प्रिपेयरिंग। आई विल शो यू कि ये सब पूरा होने के बाद कैसे दिखता है। किस मीनवाइल डू यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? Yes, no, maybe, any doubt, any question? तो है इसमें दो वर्चुअल मशीन थे, Hmm. विंडोज और लिनक्स का। Right. जब डमी वीएम बनाया गया एडब्ल्यूएस में, तो उसमें मतलब एक ही वीएम में टोटल जितने भी वर्चुअल मशीन्स रहेंगे वो कॉपी हो जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मीन्स you are ये confused or थोड़ा I सा can कंफ्यूजिंग था। say this डमी is जो my वीएम बना है server। ना डमी एडब्ल्यूएस में डमी वो, मैंने सिर्फ हाँ। बनाया है एक्चुअल सर्वर का एक कॉपी, उसमें माइग्रेशन का कोई पार्ट नहीं है अब तक। डमी मैंने मतलब एक ही मशीन का दो तरीके से बनाया, बिकॉज एक पे मैं ऑलरेडी माइग्रेशन का सब कुछ इंस्टॉल कर चुका हूँ। आई वोंट बी एबल टू डू इट, री इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं उस पे। एक मशीन एक बार हम्म। माइग्रेशन से अटैच होगी ना, इसलिए मैंने बस उसका एक कॉपी बना लिया, टू विच आई एम कॉलिंग अ डमी। हाँ, डमी में मैंने अच्छा। जब इसका डमी बनाया ना, इसमें, इस वाले का, ये जो येलो, ये दिख रहा है ना आपको, इसका डमी हाँ बनाया, तो इसके अंदर जो भी होगा ना, वर्चुअल मशीन होगी, इसके अंदर जो कुछ होगा सब कुछ कॉपी हो जाएगा, सब कुछ। हाँ हाँ वही चीज। इन दिस मशीन वॉट एवर इट इज, जो की जगह 10 मशीन भी होते हैं ना, तो भी हो जाता। और ये सब AWS का फीचर नहीं है, अज्योर पे भी आप करो तो भी ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। अज्योर पे जब आप स्नैपशॉट लोगे मशीन का, तो इस मशीन के अंदर जो भी होगा, अगर उसके अंदर 20 पैर और 20 पैर में 10 मशीन है, तो जैसे ही आप उस स्नैपशॉट से एक नया मशीन बनाओगे, उसमें भी एग्जैक्टली वो सारे 10 मशीन आपको मिलेंगे। टोटल, अच्छा। बट इट हैज नथिंग टू डू विथ योर माइग्रेशन। ये अपना हम्म। बैकअप का फीचर है, बेसिक। ओके, सो नाउ Swell, गाइस, यस। one doubt. So, under discover using appliance, so जो virtual hard disk है वो उस appliance की होंगी, right? यस। And will give it to the AWS team, वो उनके इसमें add करेंगे। Not really AWS team. You can call in this way, data center team बोलो आप, system admin team। वो System अब admin वो team. वहां पर वर्चुअल मशीन हो, वहां पर हाइपरवाइजर हो, हाइपर वी हो, वी सेंटर हो, कुछ भी हो। बिकॉज यू हैव So, सिलेक्टेड हाइपर वी, इसलिए उसने हाइपर वी की VHD दी है। ये VHD वैसे वी सेंटर में नहीं काम करेगी, बाय द वे। यू रिमेंबर एट द फर्स्ट yes. स्टेप वी सिलेक्टेड हाइपर वी। अगर आपने वहां पर वी सेंटर सेलेक्ट किया होता, तो ये आपको VHD देता। VHD नहीं देता, VMDK चलता है एक्चुअली वी स्पेयर में, Mm-hmm. आपको ये VMDK देता। बोथ आर सेम थिंग, टर्म्स अलग है, थोड़ा Mm. बहुत डिफरेंस यहाँ वहाँ है। बट द मोमेंट यू सेलेक्ट समथिंग देयर, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगा, एंड देन यू विल शेयर इट Okay. टू देयर टीम। इस केस में आप उनकी So, हाइपर वी वाली टीम को दोगे। so what that appliance will do over there? ये जो अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं ना, वो करेगा। आई टेल यू, आई शो इट टू यू। Okay, okay. ये जो मैंने इंपोर्ट किया है ना, वो Mm-hmm. इंपोर्ट डेटा अपने आप कर लेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू फिल Okay. दैट एक्सेल फाइल और यहाँ पर इंपोर्ट करना है। वो अप्लायंस सारा डेटा फेच करके यहाँ पर ये इस स्टेज पे लाके आपको डायरेक्टली छोड़ देगा। Okay, okay, अप्लायंस got it. इंस्टॉल होने के बाद पूरा वो काफी टाइम लेगा, डिपेंडिंग ऑन के कितने रिकॉर्ड्स है, कितने सर्वर्स है, एंड इट विल शो यू द सेम थिंग। यू कैन बिल्ड द बिजनेस केस और स्टार्ट क्रिएटिंग द असेसमेंट 10 मिनट्स आफ्टर इंपोर्टिंग इज कंप्लीट। अब यहाँ पर हमने मैन्युअल इंपोर्ट किया, वहां पर वो ऑटो इंपोर्ट करता था। आफ्टर दैट हाउ विल इट लुक, मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। Okay. प्लस उसमें एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। आई विल शो इट टू यू, बट हाउ इट लुक्स बनाने के बाद आई विल शो इट टू यू। ओके, दिस इज हाउ, लुक एट दिस। ये सेम एक्सेल फाइल का आउटपुट है उसका, और ये सेम ही एक्सेल फाइल मैंने यूज की है। सो इन दैट एक्सेल फाइल हाउ मेनी सर्वर्स आर देयर? 18. 18। अब ये बहुत ही छोटा एग्जांपल है, ठीक है guys? बहुत छोटा, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। यहाँ पर आपको नॉर्मली दिखेंगे 1000 2000 सर्वर। इसका एक लिमिटेशन होता है
34,000 सर्वर्स कर सकता है एक बार में वो, बट इतना कोई करता ही नहीं है। मैक्सिमम 100-200 को स्कैनिंग करते हैं एक साथ, उससे ज्यादा कभी नहीं। फॉर श्योर अगर कोई पूछता है तो कभी बोल मत देना कि आपने 2000 सर्वर एक साथ स्कैन किए। मैक्सिमम 200-250 आई हैव सीन, जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग डेटा सेंटर था, बहुत ही अच्छी बैंडविड्थ थी, सब कुछ अच्छा था। और माइग्रेट तो इतना सारा करते ही नहीं हम, 250 को तो बस स्कैन करेंगे, उसमें रेप्लिकेट 50 करेंगे और माइग्रेट 10 करेंगे। इसीलिए माइग्रेशन का प्रोजेक्ट सालों साल चलता है। ओके, सो हाउ मेनी सर्वर्स? 18 सर्वर्स। हाउ मेनी आउट ऑफ दोस 18 सर्वर्स विंडोज कितने हैं? 12 12। 12 लिनक्स कितने हैं? 4 4। एंड कितने रह गए उसमें देन? 2 व्हिच आर अननोन। कई बार ऐसा होता है ना कि उस वाले इसमें कोई नेटवर्क इक्विपमेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है जो ओएस की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो इस तरह से रिपोर्ट आपको दिखती है हमेशा। ओके, नाउ assessment report, I have already created one, hence I'm clicking on this one. अगर नहीं होती तो you can create one from here. यहाँ से आके आप ये कर लेते, you could have selected that. यहाँ पर आते आप, इसको सेलेक्ट करते, ग्रुप का नाम वगैरह देते और असेसमेंट रिपोर्ट आपकी बन जाती, राइट। यहाँ पर वन मोर थिंग इट डज, डिपेंडेंसी एनालिसिस। डिपेंडेंसी एनालिसिस क्या होता है? ये जो 18 सर्वर्स है, इसमें से डिपेंडेंसी किसकी है एक दूसरे के ऊपर? इनमें से 3 सर्वर है जो एक ही एप्लीकेशन को बिलोंग करते हैं। एक ऐप सर्वर है, एक डेटाबेस है, एक बैकएंड सर्वर है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये रिपोर्ट मुझको डिटेल दे देगी कि व्हेनेवर यू आर माइग्रेटिंग, मेक श्योर कि ये 3 सर्वर को आप एक साथ माइग्रेट करो। यू गेटिंग इट गाइस? कि ये रिपोर्ट क्यों इतनी जरूरी है? I mean, manually you can keep a track, लेकिन छूटने के चांसेस है, बहुत कुछ ये हो सकता है। And when you have the tool and that too for free, why won't you use it? तो ये डिपेंडेंसी रिपोर्ट आपको ये इंफॉर्मेशन देगी कि आप 18 में से, लेट्स से हियर 18 सर्वर्स, बट आई टोल्ड यू हम 200-250 एक साथ स्कैन करते हैं, 10-10 ये करते हैं। लेट्स से वी डिसाइडेड कि सर्वर नंबर 1 से 10 तक एक साथ होना चाहिए, बट द डिपेंडेंसी एनालिसिस सेज कि सर्वर नंबर 2, 3 एंड 4 आर इंटरलिंक्ड विद 12, 13 एंड 15। अगर आप सिर्फ उनको मूव कर दोगे तो यहाँ पर भी फंक्शनलिटी टूट जाएगी, वहां पर भी टूट जाएगी। सो दैट शुड नॉट बी द केस। आप अपने आप से नहीं डिसाइड करोगे जस्ट नंबर के बेस पे, यू वोंट डू दैट, यू विल रेफर टू डिपेंडेंसी एनालिसिस। व्हेन आई से यू डोंट हैव टू डू इट लिटरली। आप लोगों को क्या करना मैं बता देता हूँ आने के बाद, जो स्टेज पे हम आते हैं। ये एनालिसिस भी अगेन आर्किटेक्ट टीम आपका करता है। ये सेटअप आप करोगे पोर्टल पे, एनालिसिस इसका आपका आर्किटेक्ट टीम करेगा। सो वंस यू सेट अप एवरीथिंग, ओवरव्यू में आके हम देखते हैं हाउ इट लुक्स। Now look at this. Here it is taking the exact number 16. ठीक है, assessment I have created one, तो एक available है। Business case, I'm not sure if I created one. Let's see. Okay, no business case was created, so we can build a business case. Let's say if I click on build business case, this is a preview feature by the way. Here you will mention कि कहाँ पर आपको जाना है। Business case में कभी भी without numbers और इसके नहीं होगा, right? Build quick business case using a server imported CSV. Migrate all as infrastructure as a service. ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका एक बिजनेस केस प्रॉपरली आ पाएगा। डिस्काउंट कुछ मिल रहा है आपको, हैव दे प्रॉमिस्ड एनी डिस्काउंट वगैरह कुछ ये किया है उन्होंने, देन यू मेंशन दैट कि कोई डिस्काउंट आपको अज्योर ने प्रॉमिस किया। ये सब आपको आर्किटेक्ट टीम, बाय द वे दिस विल बी डन बाय आर्किटेक्ट टीम अगेन। इट इज बीइंग कंप्यूटेड, विल टेक फ्यू मिनट्स, विल कम बैक टू दिस। बिजनेस केस पे हम आते हैं। मीनवाइल विल सी असेसमेंट, वो मैंने रेडी करके रखा है। Here it is, first assessment. You can create multiple assessment by the way. And why this is important, I'll tell you. Look at this now. इसी तरह का एक रिपोर्ट कोरेंट का है, which I'll share with you guys. Here, Azure readiness. How many servers are ready to be deployed to Azure directly? All of them are ready. Ready with condition, छोटा मोटा condition होता ना, अगर like I told you कि एक पैच अपग्रेड करना है, सर्विस पैक अपग्रेड करना है, those will come under ready with condition. Some servers which are not at all supported, for example, you will still see server 2003 बहुत पुराना है, but you will still see, or maybe 2008, not R2, 8 basic वाला 8, वो भी Azure support नहीं करता है, it won't come here. यहाँ पर clearly आ जाएगा not ready. Okay, readiness unknown, कोई unknown सा सर्वर होगा जो पता ही नहीं चल रहा है,
वो यहाँ पर आ जाएगा। मंथली कॉस्ट, दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। कंप्यूट पे आपका इतना खर्चा होगा, स्टोरेज पे आपका इतना खर्चा होगा, सिक्योरिटी पे आपका इतना खर्चा होगा। स्टोरेज पे आपका किस किस इसमें स्टैंडर्ड एसएसडी को कंसीडर किया है इसने। इफ आई वांट प्रीमियम एसएसडी उसका अलग हो जाएगा, आई वहां पर सिलेक्ट करना होता है वो पहले ही। ये सब इसने आपके करंट इससे पिक किया है, ठीक है। सपोर्टेबिलिटी ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके जो एग्जिस्टिंग सर्वर है वो किस तरह से चल रहे हैं, मेन स्ट्रीम के सर्वर है या एक्सटेंडेड सपोर्ट पे चल रहा है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर 2012 और 2012 एक्सटेंडेड सर्वर्स पे चल रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर ऑरेंज में दे रखा है। अगर सारे के सारे 2019 होते तो मेन स्ट्रीम सर्वर्स वो बताता। 4 आर स्टिल अननोन, मे बी लिनक्स वगैरह कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, विंडोज कितने हैं, कौन से वर्जन है, 16 है, ठीक है। अदर्स 4 है, लिनक्स को इसने अच्छे से कैटेगराइज नहीं किया बिकॉज से दिस इज, ये इतना थोड़ा सा रफ डेटा क्यों मिल रहा है, बिकॉज इट्स एन एक्सेल फाइल जिसको मैंने खुद फिल किया है, उसमें बहुत सारी गलती है, कहीं मिस टाइपो वगैरह हो गया। बट इफ दिस वुड हैव बीन डन यूजिंग दैट अप्लायंस तो बहुत ही प्रॉपर रिपोर्ट आती, बहुत डिटेल में और प्रॉपर रिपोर्ट आती। इज दिस क्लियर गाइस, असेसमेंट क्या है? Yes. Yes, Sulbhai. यस। Okay, now you can export this और based on this assessment Azure size अपने आप recommend करता है। Now you are bringing 50 machines, तो हर एक का size आप decide करते बैठो, it's very tedious task and वो पता भी है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। But based on this, for example Azure has checked कि आपका एक मशीन है 10 GB रैम, बट Azure ने उसका यूटिलाइजेशन देख लिया है कि हार्डली 50% यूटिलाइज हो रहा है। तो Azure इसके बेस पे आपका एक ये जो है असेसमेंट एक सब ये करता है, आपको बताता है कि दिस यू कैन यूटिलाइज। वो हमको माइग्रेशन वाले फेज में देखने मिलेगा, विल सी दैट। ओके, सो दिस इज हाउ योर असेसमेंट रिपोर्ट लुक्स। ये सारी एप्लीकेशन वगैरह अगर हम करते हैं, कोई इशू है यहाँ पर, वो सब हम देखते हैं। बिजनेस केस, लेट मी सी इफ इट इज रेडी और नॉट। इवन आई हैव नॉट सीन दिस, दिस लुक्स लाइक अ प्रीव्यू फीचर। एक बिजनेस केस इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, आई ट्राई टू चेक कुछ दिख रहा है क्या, नहीं तो विल कम बैक टू दिस। एटलीस्ट गाइस दिस असेसमेंट पार्ट आप अपने लेवल पे कर सकते हो। वो असेसमेंट वाला फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, यू डोंट इवन हैव टू फिल द सर्वर्स, बस एटलीस्ट कम हियर because I'm not sure how many of you will go ahead and create a server on AWS. Maybe to few of you, अगर आप ग्रुप वगैरह बना के if you approach me, I will share my AWS server with you if you really want to do that. 2 4 5 लोगों का ग्रुप बनाओ तो मैं 2 3 लोगों में उसको शेयर कर सकता हूँ उस सर्वर को, right? And you can try this one also, the actual migration also. If not, at least assessment को जो है इस वाले टूल को आके आप एक्सप्लोर करो। वो एक्सेल फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, right? Use that एक्सेल फाइल, असेसमेंट पे आओ यहाँ पर आप। ओके, यू डिड नॉट सी राइट हाउ टू क्रिएट असेसमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बनाया असेसमेंट बता दिया। you don't have to do anything actually, वो एक बार अपलोड हो जाती है ना फाइल, it takes 10 to 15 minutes and then you have to click on this assess। यहीं पर बता देता हूँ, click on assess and now because I have already created one and so I'm not creating another one. So what do we have? Do we have servers discovered from Azure appliance or do we have imported servers? What do we have guys in our case? Imported. So you select imported, select next, you give a name, let's say I am calling it assessment 2, you call a group name, anything, you select server, not necessary आपको सारे एक साथ assessment करना है। You will see I told you कि discovery में भी आपको 1000 सर्वर आ गए, you want to select only few of them, ठीक है, 10 12 50 100 जो भी करना है आपको, and you click on create assessment, simple। उसके फिर 10 मिनट बाद आपको यहाँ पर आकर assessment दिख जाएगा, like we saw now, उस तरह से आपको assessment दिख जाएगा। overview में आना है आपको and then you have to see assessment। So I'm expecting at least you guys will do the assessment, right? और I'll assign a task कि आप assessment करो और screenshot मुझको दो, and meanwhile our business case is also ready। Let me see business case क्या होता है इसमें, figures और numbers और ज्यादा अच्छे से होंगे I think। Here it is, TCO, total cost of ownership, कितना पैसा लग रहा है क्या, you guys you don't have to worry about it at all, okay? ये figures, इसको ऑन प्रिम में कितना पैसा लग रहा है, वो ऑन प्रिम का डेटा कैसा निकाला जाए, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है, आर्किटेक्ट टीम करता है, ये सब कुछ करता है, राइट? यू डोंट हैव टू वरी, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, ताकि आप व्हेन यू स्पीक अबाउट माइग्रेशन तो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए दैट यू नो थिंग्स। ये नहीं कि बस माइग्रेशन के 4 क्लिक पता है मुझको, दैट शुड नॉट बी द केस। दैट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू, अदरवाइज ये सब आपको कुछ नहीं करना है इनमें से। हाँ, व्हाट डू यू लुक इन दिस असेसमेंट, आप लोग क्या देखते हो पता है, डिपेंडेंसी वाला जो है ना,
एंड नेक्स्ट वाले माइग्रेशन वाले इसमें वो काम में आ जाएगा. आई विल शो इट टू यू. ठीक है. सो दिस इज योर असेसमेंट. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स हियर गाइस? Yes guys, any doubts, any questions, please एक feel free क्वेश्चन to था, ask. व्हाट इज डिपेंडेंसी? यही था ना, मतलब माइग्रेशन रिलेटेड ही था ना वो क्वेश्चन? हाँ हाँ, राइट. डिपेंडेंसी एग्जैक्टली यहाँ पर डिपेंडेंसी यही है आपकी कि विच सर्वर्स आर कनेक्टेड टू विच सर्वर. एग्जाम्पल के लिए एक डेटाबेस सर्वर है, मैंने उसका डेटाबेस वहीं पर छोड़ दिया और एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड मूव कर दिया. विल दैट एप्लीकेशन वर्क? माइग्रेशन वगैरह सबसे सक्सेसफुल हो गया. अनलेस आई एम प्लानिंग कि उसको पीछे छोड़ना है एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी मेरे ऑन प्रेम में और डेटा सेंटर में. ऐसा नहीं कि सारे सर्वर आपको करने ही होते हैं. बट इफ यू आर प्लानिंग और कनेक्टिविटी है ऑलरेडी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट बाय मिस्टेकली अगर आपने डेटाबेस सर्वर को या बैकएंड सर्वर को पीछे छोड़ दिया और फ्रंट एंड सिर्फ माइग्रेट कर दिया, विल द एप्लीकेशन वर्क? इट वोंट वर्क. सिंपल. नो. तो वही होता है डिपेंडेंसी. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. बहुत सारे डिपेंडेंसीज हो सकते हैं. कोई डिपेंडेंसी इसकी हो सकती है आपकी, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, दैट दिस इज माय एक्चुअल सर्वर, बट कोई भी डेटा इससे जाता नहीं है. इस सर्वर से मैं एक प्रॉक्सी सर्वर पे जाता हूँ और वहां से डेटा पब्लिक में जाता है. इवन पीपल वांट टू एक्सेस मी, पर प्रॉक्सी सर्वर पे आते हैं, वहां से इसको एक्सेस करते हैं. तो वो प्रॉक्सी सर्वर भी मेरा एक जो है डिपेंडेंसी सर्वर हो गया. इट इज नॉट अ बैकएंड सर्वर, इट इज नॉट डेटाबेस सर्वर, बट वो प्रॉक्सी सर्वर भी मेरी डिपेंडेंसी होगी. गॉट इट? यस. Okay. Now let's move to migrate. Now I told you assessment can be done, can be skipped. Can be done using Azure Migrate Discovery and Assessment tool, or can be done using one of these tools. Okay. Migration, it can be done using any other tool, or we can do this tool also. अब यहाँ पर मैंने already migrate और replication कर रखा है. Which project? UT Cloud Migration Project. Hence मैं फिर से यहाँ पर जा रहा हूँ डमी प्रोजेक्ट पे. आई विल शो इट टू यू, बट माइग्रेट हम यहीं से करेंगे, राइट? बिकॉज ये रेप्लिकेशन में जो है 3 घंटे लग जाते हैं आराम से. आर यू गेटिंग इट गाइस? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? Yes guys, yes, no, Getting it. maybe. No doubts. Okay, so here I am going to dummy project. Again, before migration we have to discover. Click on discover. From where I am bringing my machines? Hyper-V. I'm not explaining this again, we know it now. अगर physical data centers होता, I would have selected physical. vSphere होता, I would have selected vSphere. But I am bringing my machines from Hyper-V. Target region, this is very important now. यहाँ पर गलती मत कर दो, जिस रीजन में आपको जाना है वो रीजन को सेलेक्ट कर लो. ठीक है? ओके, गुड. ईस्ट यूएस वी वांटेड, नॉट ईस्ट यूएस 2. क्रिएट रिसोर्स. What is it creating as of now? Just your discovery phase को ready कर रहा है, nothing else. By the way, landing zone setup I have already explained it to you last time. फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. What is a landing zone setup? Before you move your virtual machines, जो भी आप ला सकते हो यहाँ पर, load balancer, virtual network, subnets, VNet peering, everything, whatever can be done. जस्ट इमेजिन कि वहां पर आप अपना माइग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पर मशीन आप लाने के बाद आप उसकी बेसिक सेटिंग्स कर रहे हो, वही नेट बना रहे हो, सबनेट बना रहे हो, एनएचजी बना रहे हो. कितना टाइम लगेगा, राइट? सो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट. ये सब कुछ आपको पहले करके रखना होता है एंड देन उसके बाद आप माइग्रेट करोगे. बट दिस इज अ बिजनेस एडवाइस, आई वुड से. टेक्निकली कोई ये नहीं है, आप कर तब भी पाओगे, बट देयर आर सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आल्सो कि जिसके बिना कर ही नहीं पाओगे. सो व्हाट आर दोस टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स? वन इज योर रीजन शुड बी रेडी. कहाँ आपको ये डिसाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, अदरवाइज माइग्रेट नहीं कर पाओगे. ये माइग्रेशन का विंडो है, इट विल अपीयर, आई विल शो इट टू यू. देन सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, वो पहले ही डिसाइड करके रखोगे आप कि आई एम ब्रिंगिंग 4000 सर्वर्स. लॉन्ग टर्म का 5 साल का प्रोजेक्ट है, 4000 सर्वर आने वाले हैं. इतने सर्वर्स है, तो किस तरह के हम लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं? आर वी टेकिंग इट ऑन रीजन बेस्ड? आई हैव सीन इट इन रीजन बेस्ड आल्सो. और आर वी बेसिक, जो एक सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला है, डेव एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट. उस तरह के 3 आप लोग ये ले लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो वो पहले से डिसाइड होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन शुड बी अवेलेबल. देन रिसोर्स ग्रुप, किस रिसोर्स ग्रुप में मशीन मूव होने वाली है एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन. उस विंडो पे आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है. रिसोर्स ग्रुप शुड बी देयर. देन देयर शुड बी वन स्टोरेज अकाउंट, जहां पे वो टेम्परेरी कॉपी होता है. एएसआर का कॉन्सेप्ट आप याद करो.
एक टेम्परेरी स्टोरेज अकाउंट चाहिए होता है. ओके, nowadays I think it allows to create a storage account, we'll see that. लेकिन एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, एंड देन अ वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट. ये चीजें these are definitely required. तो ये तो पार्ट है ही लैंडिंग जोन का, प्री रिक्विजिट लैंडिंग जोन. इसके अलावा भी जो आप रखते हो ना एनएसजी वगैरह, जैसे ये अभी एक आपका ये मशीन है, वेब मशीन हम बनाने वाले हैं, राइट. एंड इफ आई वांट यू गाइस टू एक्सेस माय वेबसाइट, तो मुझको क्या लगने वाला है इसमें, पब्लिक आईपी तो मैं लगा दूंगा, सो यू गाइस कैन एक्सेस. उसके अलावा क्या, व्हाट डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड व्हिच इज नॉट शोन हियर? लोड बैलेंसर. लोड बैलेंस. नो नो, आई विल गिव यू द पब्लिक आईपी डायरेक्टली. सर्वर का पब्लिक आईपी दे दूंगा ना मैं. लोड बैलेंसर क्यों, एक ही तो सर्वर है, व्हाई वुड आई यूज लोड बैलेंसर? एक अलग लिनक्स एक अलग एप्लीकेशन है, विंडोज एक अलग एप्लीकेशन है. व्हाई एम आई यूजिंग लोड बैलेंसर देन? अच्छा, वीनेट सबनेट. वो तो ऑलरेडी इसमें है, उसके बिना तो मैं वो जा ही नहीं सकता हूँ. आई एम आस्किंग हाँ, व्हिच इज उसके समथिंग व्हिच इज अलावा. नॉट हियर, अच्छा. व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस टू टेस्ट द एप्लीकेशन. माइन तो इज एक ये वेब. एनएसजी लगेगा, परफेक्ट. एक एनर्जी लगेगा उसमें, मुझको वो आरडीपी। आने वाला ट्रैफिक को मुझको अलाउ करना पड़ेगा, राइट. then only I'll be able to, otherwise I can move machine and then also I can do it. That is not a technical requirement, लेकिन it's waste of time. तो वो सारा मुझको पहले से बना के रखना है. In our case I have already done that. Okay, now look at this. तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया Hyper-V, here I got, यहाँ पर अप्लायंस नहीं आता है, एक एजेंट आता है इंस्टॉल करने के लिए. ओके, सो आई विल डाउनलोड दैट एजेंट. यहाँ पर इट्स वेरी स्मॉल एजेंट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं. Okay, I will download this. I'm not doing it now because I've already downloaded that. I will download this agent here, or let me do it. Fine. बहुत ही छोटा सा है, immediately download हो जाता है. Okay, here it is. It's done. 52 MB. Again, I will put it in some common location. ठीक है, इसको मैं common location में रखूंगा, and then I will ask them. यहाँ पर common location में रख दिया. There is one more thing by the way. ये भी है. ये आपने कर दिया. Then there is a key. I will download this key also. Okay, the key I am downloading. I hope I should be able to copy, otherwise वही show हो जाएगा. So I have downloaded. By the way, guys, we are doing migration, right? And what do you rate that agent का नाम क्या दिख रहा है आपको, जो agent just हमने download किया है? ext NSR. file. Yes, look at this. Azure Site Recovery. As I told you, ultimately backend में Azure Site Recovery ही use होता है. So now I am gonna copy that to some network location, and I will be sharing that with my system admin team. System admin team को मैंने दे दिया. I'm not sure. Let's see if it copies from here to here. By the way, नहीं कॉपी होता तो what I would have done. What do you think? अगर कॉपी नहीं होता तो क्या करता था मैं? Actual environment में कॉपी हो जाएगा, डोंट वरी. और अगर नहीं होता है तो that is your system admin's job. वो लोग देख लेंगे कि कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना है. It's their headache. In this case, अगर कॉपी नहीं होता तो what comes to your mind? I want to see आपके पास क्या आइडिया आता है. अगर ये मेरे Network shared folders. हाँ, गुड आइडिया, बट बहुत ही ज्यादा मतलब घुमाने वाला आइडिया है, बट दो इट्स अ गुड आइडिया. व्हाट एल्स? यस गाइस, व्हाट एल्स? दिस इज माय AWS मशीन. ओके, इंटरनल जो सर्वर्स बने हैं ना, ये दो लिनक्स एंड विंडोज, उस पे इंटरनेट नहीं है मेरे पास. But let's check if I have internet on this machine. I do have internet on this machine. That's a hint for you guys. What do you think now? How will I get these two files here? a cloud drive or as OneDrive. It's same thing. What is the range set? I mean, OneDrive, Cloud Drive, Google Drive, network, Azure पे network share बना लो, which is correct. More easy. We need IP. Sorry. Do we need public IP? Public IP for what? My question is, if I am not able to copy these files, then what is a workaround which comes to your mind? It's simple, guys. You will log in here. Why can't you log into your Azure account here? Internet है ना आपके पास?
यहाँ पर लॉग इन करो और डायरेक्टली इस पर डाउनलोड कर लो. गेटिंग इट? कम हियर, इस Yes. मशीन पे आप आ जाओ. इफ दे आर गिविंग यू एक्सेस टू दिस मशीन इट्स फाइन. अगर नहीं, टीम्स पे कॉल करो, आस्क देम टू शेयर द कंट्रोल, लॉग इन करो इस मशीन पे, यहाँ पे अपने पोर्टल. एंड वी हैव डन दिस, लिटरली ऐसे ही होता है, ये कई बार होता है. वैसे इतनी छोटी फाइल के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर दिस इशू, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो हमको कई बार ऐसे टैकल करनी पड़ती है. Okay, okay, Simple. clear, Salbhai, clear. Got it? Mm-hmm. Yes. 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 Okay, by the way, let's check if these machines are still accessible. This is the dummy machine. उसमें मैंने चेक नहीं किया, होनी चाहिए by the way, चल जाती है. और नहीं चलेगा तो उस VM को एक बार आप reboot कर देना. When you practice, in case any one of you is taking this machine from me, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा by the way, it's very costly machine. Okay, Linux चल रहा है, Windows machine कभी कभार नहीं चलती, उसको मैं एक बार यहाँ से अगर reboot कर देता हूँ ना तो चलेगी. But that's okay, we are not actually migrating this machine, so I'm not spending time on that. Right? Almost copy हो गया है, but we have only 1 minute left. So do you guys have any questions, any doubt? Okay, by the way, look at this. यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? कुछ connected server दिख रहा है फिलहाल? No. Nice. Okay, once we download it there, right? यहाँ पर एक connected दिख जाना, download I mean configure. ठीक है, so let me configure that. ये हो गया copy. So I will install that. ये वाला Azure Site Recovery का जो हमने ये किया था. I am installing it. Where am I doing it, guys? Is this the machine which I'm going to Hyper-V, migrate? Hyper-V. Yes. No, is this the machine which No, I this want to is the migrate? This is AWS the machine. machine which is hosted, which is hosting my Hosted. machines जिनको मुझको migrate करना है. Hyper-V machine है, correct? Okay. इसमें हमेशा recommended होगा और ये करना, check करना live environment में. We are not doing it now. Next, install. Now, did I mention the details के ये और मेरा Azure subscription connected है अभी तक? मेरी AWS की machine और मेरा Azure ये. How will it know कि कहाँ पे जा रही है ये machine? Are you guys getting the question? Mm-hmm. So that Not you will see on mentioned the yet. next screen. ये next screen पे जब आते हैं, we'll have to upload one file. You click on register. Guys, if this get disconnected, we'll join immediately without any break. Click on browse. Less than 30 seconds are pending. May get disconnected anytime. Click that file जो हमने download की थी वहां से. And look at this. ये सारी information इसने capture कर ली. ठीक है. Let's disconnect and rejoin. I have to explain this one also.